students, how are you all? कैसे हैं आप सब? Wish you all a very good morning and a warm welcome to my series Quick Gyan on Social Science from my YouTube channel Social Science Made Easy. Bachcho, before I start talking about the series, let me quickly introduce myself to you all because I am sure there might be students who are new to this channel and this series joining the series, right? So I am Shifa Gupta Bachcho. I have done MBA and I did a job as research analyst. But after a little while, I started preparing for UPSC. Yes, I was a UPSC aspirant, and during my studies with UPSC, I developed so much interest in social science, and I will assure your interest in social science as well. Right. So, bachcho, now about this series. What is this quick gyan on social science? This series will clear all your concepts of different topics of social science subjects. This series is for the students of class 9th and 10th, and I'll be clearing all the doubts and I'll be clearing all the concepts of different social science subjects. And समझ लो बच्चों वारे नारे होने वाले हैं. So right, bachcho, I'll be running the series in a very simple way. I'll be making social science for you way too easy and interesting. You just need to give me a thumbs up, like, follow and subscribe this channel. And बच्चों समझ लो कि सोशल साइंस की प्रिपरेशन तो आपकी 100% होने वाली है. So shall I, without wasting any time, shall I start with the first session of this series? For the students of class 9th, I need a thumbs up. Great. So, bachcho, the first topic that I have picked is from the first chapter of हिस्ट्री फ्रेंच रेवोल्यूशन. बच्चों को हिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है. नहीं नहीं नहीं, अब नहीं होने वाला है. You have to just follow the series and things will be way too easy, simpler and interesting for you, guaranteed. So बच्चों हिस्ट्री भी difficult नहीं है, and I will be starting with the topic the causes of French Revolution. Before I start with this topic, बच्चों, I have something important to share with you. Just बच्चों को तो बच्चों फ्रेंच रेवोल्यूशन समझ ही नहीं आया. I would strongly recommend. I have launched another series from my channel called Crack Social Science, wherein I have started with the chapter The French Revolution for the students of class 9. तो बच्चों जिसको तो डिटेल में समझना है तो वो सीरीज भी देख ले, वो सीरीज को अच्छे से फॉलो कर ले, तो ये वाला टॉपिक बहुत इजी वे से क्लियर होने वाला है. और जिस बच्चे को लग रहा है कि मैम फ्रेंच रेवोल्यूशन समझ तो आ गया है, लेकिन एक थोड़ा सा जस्ट मिल जाए, एक फाइनल टचेस मिल जाए और एक हमें एक ऊपर से एक वो समरी मिल जाए, तो बच्चों यू हैव कम टू द राइट डेस्टिनेशन. राइट. सो शैल आई स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक? All excited, all geared up, all charged up? Chalo, let's start with the first topic of the series, the causes of French Revolution, and I will be clearing this through this one slide. But this slide sums up the every point that is required. You need to know about how and why did French Revolution occur. French Revolution 1789 में स्टार्ट हुआ है, तो ये स्टार्ट हुआ तो हुआ क्यों? ऑल्दो सब बच्चों को लग रहा होगा मैम अल्टीमेट कॉज तो प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़े थे, ग्रेन्स बढ़े थे, गुस्सा आ गया था लोगों को, थर्ड स्टेट मेंबर्स को. इफ यू एवरीवन आई होप क्लियरली रिमेंबर्स. बट बच्चों उसके पीछे बहुत से कॉजेज होते हैं जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन को जिसके कारण ये रेवोल्यूशन आया. द अल्टीमेट कॉज माइट बी जस्ट वन, but there are many causes behind the revolution, right? So shall I start? तो बच्चों I have categorized the causes of French Revolution which started in 1789. तो बच्चों हमने 1789 से पहले वाले टाइम को डिस्कस करना है इस टॉपिक में, राइट? तो इस टॉपिक में 1789 से पहले वाले टाइम में I have categorized the causes into three categories. One of it is social causes, social factors which are responsible for the revolution. Second is economic factors, and third is the political factors, right? तो अब फर्स्ट फैक्टर, सोशल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या पॉइंट्स है? तो द फर्स्ट पॉइंट इज देयर वाज अ discrimination among the estate group. There was a discrimination. Why? Because the first estate and the second estate, as we all I hope remember and you know are aware, the first estate group are called are considered as the clergy people. The second estate were the nobles. तो ये जो clergy और nobles थे, they constituted 3 to 4% of the population, and they were enjoying
so many privileges. They were not paying any taxes, and they were living extravagant life, luxury. They were enjoying all sort of luxury. There was a people with privileges, and there were 96 to 97% of the population, the third estate people, who were not enjoying privileges, unlike the first two estates. So बच्चों, थर्ड estates को लगा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, particularly the peasants क्यों? They constituted 90% of the population. France population, they constitute 90% of the French population during the old regime. अब ये old regime क्या है? 1789 वाले से पहले वाला पीरियड, राइट? तो ये ओल्ड regime में 90% of the population were peasants. They did not have land of their own. Most of the peasants did not have land of their own. Peasants were engaged in the feudal system with the king. अब ये feudal system क्या था? याद है? feudal system मतलब आपके पास अपनी लैंड नहीं है, राजा किंग गिव्स लैंड टू द पीजेंट्स, एंड इन रिटर्न द पीजेंट्स हैव टू गिव फ्यूडल ड्यूज. पीजेंट्स हैव टू ऑफर सर्विसेज टू द किंग. कोई भी सर्विसेज बोलेगा किंग तो करनी पड़ेगी, चाहे बोले वॉर में लड़कर आओ, चाहे बोले पैलेस में काम करो, चाहे बोले उसके घर पे काम करो. एनी सॉर्ट ऑफ सर्विसेज दैट किंग्स डिमांड फ्रॉम द पीजेंट्स हैव टू ऑफर दोस सर्विसेज. तो फ्यूडल ड्यूज देने पड़ रहे हैं पीजेंट्स को, सर्विसेज देनी पड़ रही है. Extra taxes were levied on peasants. Tithe, which was only imposed on peasants by the clergy people. Church levy करता था on the peasants. Tithe tax. There were many other taxes still जो सबको third estate members को देना पड़ता था. Then there were several indirect taxes like salt, टोबैको, सब पे टैक्स था. तो बच्चों, पीजेंट्स की हालत ना बहुत बुरी हो गई होती. ऊपर से ऊपर प्राइजेस ऑफ बेसिक स्टेपल डाइट, जो स्टेपल डाइट क्या थी, ब्रेड, उनके वहां के प्राइजेस भी बढ़ा दिए थे. तो बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आई होप. बच्चों, आई एम श्योर दिस स्लाइड विल मेक योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वे टू इजी. यू जस्ट नीड टू वेट अ लिटिल वाइल और आपको काइंड ऑफ एक स्टोरी ही क्लियर हो जाएगी बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले पीरियड की, राइट? सो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया? डिस्क्रिमिनेशन था अमंग द एस्टेट ग्रुप. फर्स्ट एंड सेकेंड estate were enjoying many privileges, unlike the third estate जिनके पास they were being burdened with taxes and dues and everything. So right, clear as a discrimination, the privileges, and there was a burden on on the peasants, particularly in the third estate member. सेकेंड पॉइंट क्या था बच्चों? देयर वाज अ राइज ऑफ मिडिल क्लास. ये मिडिल क्लास कौन से स्टेट में फॉल करते हैं? थर्ड स्टेट में. जो भी क्लर्जी और नोबल्स नहीं है वो सब आ गए थर्ड स्टेट के अंदर. अब मिडिल क्लास who were getting more wealthier and more educated, they felt that we also deserve privileges. The privileges should not be by merit. Privileges should not be by birth, but privileges should be by merit. So why are we paying taxes and why not clergy people? वो क्यों नहीं taxes दे रहे हैं? We also deserve privileges. We are working hard. पैसे हम दे रहे हैं, taxes हम दे रहे हैं king को. We also demand privileges. We also want that. So बच्चों, जब मिडिल क्लास उभर कर आया, कैसे उभर के आया? उनको एजुकेशन मिला, उनको न्यू आइडियाज मिले. सो बच्चों, राइज ऑफ मिडिल क्लास वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाई फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड. ये इन्होंने ही आग लगाई है, ये याद रखना, राइट? सो थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? इंस्पिरेशन बाय फिलोसफर्स. अब ये फिलोसफर्स ने किसको, जो मैंने अभी आइडियाज की बात की, किसने दिए मिडिल क्लास को आइडियाज? ये फिलोसफर्स ने. फिलोसफर्स आए बच्चों 18th सेंचुरी में. 18th सेंचुरी, आई होप एवरीवन नो, सेंचुरी बैकवर्ड जाता है. 1700 टू 1800 वाला पीरियड हो गया 18th सेंचुरी, राइट? तो बच्चों, फिलोसफर्स आए. रूजो, जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू, जिन्होंने बोला कि राजा शुड नॉट हैव डज नॉट होल्ड द डिवाइन पावर. राजा कोई भगवान नहीं है. देयर शुड बी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. लोगों और जो गवर्नमेंट चला रहा है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. राजा अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है. The power at the center should be divided like legislative, executive and judiciary. तो उन्होंने they did not support the autocratic despotic rule of the king, right? तो बच्चों, ये फैक्टर्स थे जिनके कारण गुस्सा बढ़ रहा था. अब बच्चों, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या थे?
ये डिस्कस कर लेते हैं, राइट। आई होप थिंग्स आर गेटिंग मोर क्लियरर। अब और समझ में आ रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन सबको समझ आ गया है, तो अब इससे और क्लैरिटी बन रही है। गिव मी अ थम्स अप इफ थिंग्स आर गेटिंग मोर क्लियर टू यू, राइट। चलो, नाउ वी विल डिस्कस द इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है बच्चों? वन ऑफ द फैक्टर इज द फाइनेंशियल क्राइसिस। अब जब राजा, स्टोरी कहां से स्टार्ट हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की? जब राजा किंग लुई 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस, तो बच्चों क्या हुआ था? वहां की इकोनॉमिक कंडीशंस वर वेरी बैड। एक तो ऑलरेडी हमारा किंग था, शाही ठाट तरीके से रहता था, लग्जरी लाइफ जीता था, उसकी वाइफ मैरी इंटरनेट भी ऐसी थी। तो बच्चों पैलेस का कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत ज्यादा था। 1 बिलियन लिवर, लिवर क्या था? फ्रांस की करेंसी। तो 1 बिलियन लिवर डेट तो ऑलरेडी चढ़ा हुआ था। ऊपर से ऊपर बच्चों फ्रांस गॉट इन्वॉल्व इन वॉर। किसके साथ? अगेंस्ट ब्रिटेन टू सपोर्ट दी 13 अमेरिकन कॉलोनीज। तो फ्रांस ने ब्रिटेन के अगेंस्ट वॉर सपोर्ट किया। फ्रांस सपोर्टेड 13 अमेरिकन कॉलोनीज बिकॉज फ्रांस वॉज अगेंस्ट ब्रिटेन। तो वो 13 अमेरिकन कॉलोनीज किसके कंट्रोल में थी? ब्रिटेन के कंट्रोल में थी। तो अब दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, तो फ्रांस ने सपोर्ट किया था दी 13 अमेरिकन कॉलोनीज। तो बच्चों वॉर, अब वॉर में इन्वॉल्व होगा तो पैसे तो लगेंगे ना। कहां से आर्मी खाएगी पिएगी, कहां से वो वेपन्स लेगी? तो बच्चों 1 बिलियन लिवर डेट और चढ़ गया। तो टोटल हो गया था 2 बिलियन लिवर डेट। इमेजिन, जब किंग लुई 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस, लुई 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस, डेट चढ़ गया था, डेट था, कर्जा चढ़ गया था 2 बिलियन लिवर डेट। ऊपर से ऊपर बच्चों स्टेट लेंडर्स, जिन्होंने स्टेट को, किंग को, कंट्री को लोन प्रोवाइड किया, उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था 10% पे। तो हालत देख लो अब क्या हो रही थी, सिचुएशन क्या थी फ्रांस की। आई होप नाउ यू कैन वेरी वेल इमेजिन। ऐसा ही हुआ था ना। तो सेकंड पॉइंट क्या था? फ्यूडल ड्यूज। एज आई जस्ट एक्सप्लेन कि पीजेंट्स वर एंगेज्ड इन द फ्यूडल सिस्टम विद द किंग। तो किंग, राजा पीजेंट्स को क्या देता था? लैंड, एंड इन रिटर्न पीजेंट्स देते थे किंग को फ्यूडल ड्यूज एंड दी सर्विसेज। तो बच्चों फ्यूडल ड्यूज, और एक लैंड आपकी अपनी नहीं, चलो आप उस पर हार्वेस्ट करो, कभी उगता है फसल कभी नहीं उगा, तो क्या करे? पीजेंट्स को फ्यूडल ड्यूज देने पड़ते थे। पीजेंट्स की हालत और बच्चों बहुत ही ज्यादा बुरी थी, बहुत ही ज्यादा टेरिबल थी। एंड बच्चों इतना बुरा था कि उनके लिए तो जीना, सर्वाइवल इश्यूज आ गए थे। एक टाइम तो ऐसा हुआ जब हार्वेस्ट भी नहीं हो रही है, प्राइसेस ऑफ ग्रेन एंड ब्रेड बढ़ी जा रहे हैं, तो बच्चों आ गया था सबसिस्टेंस क्राइसिस। मुश्किल आ गई थी, सर्वाइवल के लाले पड़ गए थे, राइट। थर्ड पॉइंट इकोनॉमिकल फैक्टर्स के अंदर, सेवरल टैक्सेस इंक्रीज्ड। ये था बच्चों दी फाइनल कॉज। जब किंग प्राइसेस ऑफ ब्रेड ग्रेन्स बढ़े और किंग लुई 16 ने सोचा कि अब मेरी कंडीशंस, फ्रांस की कंडीशंस, कर्जा इतना चढ़ गया हुआ है, 2 बिलियन लिवर डेट चढ़ गया हुआ है, पैसे कहां से आएंगे? टैक्सेस बढ़ा देते हैं तो पैसे आ जाएंगे। तो पर टैक्सेस वर, द बर्डन ऑफ द टैक्सेस वर ऑन दी थर्ड एस्टेट मेंबर्स। First estate, the clergy not giving any taxes. Second estate, nobles not giving any taxes. They were living the life of luxury. लेकिन जिनकी हालत बुरी है, 90% of the peasants who are paying feudal dues, who did not have land of their own, who the prices of basic staple diet has increased for them, and बच्चों ऊपर से ऊपर उनके taxes भी बढ़ा दिए। टिथ और मे बी टिल वॉट एवर टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ने के लुई 16 प्रपोज कि हम अपने टैक्सेस बढ़ाते हैं। तो बच्चों ये कॉज आया, ये लेकर आया। ऊपर से ऊपर मिडिल क्लास को आइडियाज मिल रहे हैं, रोल ऑफ फिलोसफर्स आ रहा है कि क्या ये गलत हो रहा है, सोसाइटल स्ट्रक्चर इज नॉट गोइंग इन अ राइट वे। तो बच्चों अब आप देख लो कि कितना रेवोल्यूशन को आग लगाने के कितने फैक्टर्स बन गए, राइट। Now the third factor, the political factor, the autocratic and absolute rule of King Louis XVI. राजा मन मर्जी अपनी करता था, किसी की सुनता नहीं था. He was insensitive to people's problem. The second point under political factors, किसी के नहीं परवाह करता था. Noble and clergy, life of luxury, extravagant life. They were getting many privileges, and all the burden was on the third estate, and he was insensitive to their problems. Particularly the peasants who constituted 90% of the population. बच्चों किसी कंट्री में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की अगर आप बात नहीं सुनोगे
तो रिवोल्ट तो आना ही बनता था, गुस्सा तो आना ही था। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप अब पिक्चर एकदम क्लियर हो गई है। बिफोर 1789 के मैंने बहुत से पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस कर दिया है एंड थिंग्स आर नाउ वेरी वेल एंड इजीली क्लियर टू यू ऑल। अगर फिर भी कोई डाउट है, यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी टेकिंग दैट कोर्स, राइट? नाउ द लास्ट फाइनल पॉइंट, गुस्सा कब आया? जब प्राइसेस ऑफ ग्रेन्स एंड ब्रेड बढ़ गए। बच्चों प्राइसेस बढ़े तो क्या हुआ? पीजेंट्स की सैलरी फिक्स है, वर्कर्स की सैलरी फिक्स है। अब सोचो तो रियल वेज कम हो गया। अब ये रियल वेज क्या है बच्चों? आई जस्ट एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज अगर 100 रुपीज है पीजन की सैलरी एंड अगर वो उस 20 रुपीज की वन ब्रेड है, राइट? तो अब हाउ मेनी ब्रेड्स ही कैन हैव एट अ टाइम? एक टाइम पे कितनी ब्रेड्स ले सकता है 100 रुपीज से? 5 ब्रेड्स, राइट? अगर prices of breads increase from 20 to 25, now he can just have 4 breads, right? तो बच्चों वेज उसकी नहीं बढ़ी है, उसकी एक्सपेंसिंग, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई थी। सैलरी बहुत कम थी, ज्यादा नहीं थी, सैलरी बढ़ नहीं रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो परचेजिंग पावर कम हो गई, तो लाले पड़ गए, सर्वाइवल इश्यूज आ गए, तो गुस्सा तो आना ही था। आई होप थिंग्स आर नाउ absolutely clear to you all. But I assure you, I'll be running this series in a very simple way, easy way, and making social science for you all way too easy and interesting. Right? Clear है बच्चों? I hope इससे आपको बहुत से फैक्टर्स पता चल गए, पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। जो कोई डाउट था बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला पीरियड 1789, मैंने पूरा एक समरी दे दी आपको, right bachcho? But still, who wants to know the detail, the complete chapter in detail, do follow my another series, Crack Social Science, where I'm discussing the complete chapter, right? चलो, now the last point that I've written, it was not a sudden event. बच्चों इवेंट आपको क्या लग सडन तो था, मतलब गुस्सा कब आया? जब प्राइसेस बढ़ रहे थे, गुस्सा आना था जब वहां पर ग्रेन्स और ब्रेड के प्राइसेस बढ़ने लगे, टैक्सेस ऊपर से बढ़ रहे थे, गुस्सा तो आना ही था। बट लेकिन it was actually a product of many evil conditions, the socio-economic and political evil conditions which I have just discussed with you all. क्लियर है बच्चों? मजा आ गया? चलो, now with this I end this session, and in the next session I will be discussing the political changes in the French Revolution, political structural changes in the France, not in the French Revolution, the political structural changes in France. कैसे कैसे राजा पहले from the autocratic rule, and then the rule became constitutional monarchy, then republic. कैसे वो political changes आए, that I'll be discussing in my नेक्स्ट सेशन। तो बच्चों आप समझ लो कि आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन मेरे ये सेशन से आपको बहुत क्लियरली समझ में आने वाला है, एंड इट विल बी वे टू इजी एंड सिंपलर फॉर यू ऑल, राइट बच्चों? So do not forget to like, subscribe and comment on this channel, or how do you like this session, right? Chalo, have a good day, keep smiling, and bye bye bachcho.